the southeast trade winds of the southern hemisphere, the southeast trade winds of the southeast trade winds of the southern hemisphere cross the equator and start blowing in the southwest. I'm repeating, the southeast trade winds of the southern hemisphere cross the equator and start blowing in the southwest to the northeast direction. Start blowing in the southwest to northeast direction under the influence of Coriolis force. Under the influence of Coriolis force. Coriolis, C-O-R-I-O-L-I-S, Coriolis force. Okay. Next point you write. These displaced trade winds are called. These displaced trade winds are called southwest monsoons. When they blow over, these displaced trade winds are called southwest monsoons when they blow over the Indian subcontinent. They blow over the Indian subcontinent. Full stop. The front where the front मतलब कहाँ पे, जहाँ पे कुछ मिल रहा हो, front. The front where the southwest monsoon winds. The front where the southwest monsoons. The front where the southwest monsoons meet the northeast trade winds is called monsoon front. It's called northeast winds. Northeast trade winds is known as monsoon front. इसी सिचुएशन को, ये ITCZ को हम क्या कहेंगे, मॉनसून फ्रंट कहेंगे. ठीक है, ये वाले रीजन को. जनरली तो वो ITCZ कहलाता है, बट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जाएगा, रेन करेगा, तो इसको तो हमने एक तो मॉनसून नाम दे दिया. ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून के नाम से कहा, और ये जो फ्रंट जहां पे बन रहा था दैट इज कॉल्ड मॉनसून फ्रंट. ठीक है, रेनफॉल अकर्स एट दिस फ्रंट. Rainfall occurs along this front. Next line you write, in the month of July, in the month of July, the ITCZ shifts to, in the month of July, the ITCZ shifts to 20 to 25 degree north, shifts to 20 to 25 degree north latitude. In the month of July, the ITCZ shifts to 20 to 25 degree north latitude and is located in the Indo-Gangetic plain. Is it clear? Is there any doubt in any point? सारे point simple है, clear है, क्या हो रही है situation, what is happening? Is the what is happening mechanism clear? ठीक है? Now we will look at what happens to this wind when they are blowing towards the Indian subcontinent. Okay? ठीक है, दिस इज द फ्लो ऑफ द विंड्स. क्या हुआ? दिस इज द फ्लो ऑफ द विंड, दिस आर द साउथ वेस्ट विंड्स. ओके, साउथ वेस्ट विंड्स जो जा रही हैं,
Getting what will happen? These winds when come to the Indian subcontinent, they get bifurcated into the two branches. Bifurcate मतलब ये winds, एक wind क्या डायरेक्शन क्या है, इधर जाएगा, ठीक है, और दूसरी कहाँ है हमारी, इधर की तरफ जाएगी, ठीक है. So this is called the Arabian branch and this is called the Bay of Bengal of the branch. To which region it will rain? यहाँ पे बारिश करेगा, यहाँ पे बारिश करेगा, यहाँ पे हमारी अरावलीज हैं, तो विंड्स क्या है, डायरेक्टली इसको पास करते हुए सीधी निकल जाएगी. अगर कोई बैरियर होता तो इट वुड हैव डन रेन हियर ओनली, ठीक है, रेनफॉल यहीं पे हो जाता, बट अरावलीज आर इन द पैरेलल डायरेक्शन टू दिस साउथ वेस्ट विंड्स, सो देयरफॉर नो रेनफॉल अकर्स इन दिस और दिस रीजन. ओके, सो रेनफॉल क्या है, डायरेक्टली पास जाके, ये हमारा हिमालयस है, getting, so it will go and fight with the Himalayan से टकराएगी, orographic rainfall will happen in this northern region of India. What will happen to the second branch? Winds will come, ठीक है, it will do rainfall in this Bengal Odisha वाला region, it will go to the Bangladesh and this Himalayan ranges are there, छोटी छोटी हमने ranges पढ़ी थी, so there also we will have sufficient of rainfall. Getting, दोनों regions का significance समझ में आया, दोनों branches का. ठीक है, this is the getting what is happening. The southeast winds are getting converted into the southwest monsoon winds. Okay, this is the southwest winds. ठीक है, first branch you will draw like this. This is the first branch. यहाँ पे क्या है हमारे, which ghats are these? These are the hill ranges. Which ranges are these? कौन सी ranges है यहाँ पे? हाँ, हाँ, सिंपल, दिस इज वेस्टर्न घाट्स आर दिस. ओके, और यहाँ पे हमारी क्या थी, अरावली थी. सो दे विल कम, दे विल मीट दिस वेस्टर्न घाट, दे विल डू रेनफॉल. बहुत ज्यादा बारिश होती है ना वेस्टर्न घाट्स में, इसीलिए ह्यूज बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे काफी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एंड देन दे विल मूव फॉरवर्ड. ठीक है, यहाँ पे बारिश होगी. व्हाट विल हैपन टू दिस ब्रांच, बे ऑफ बंगाल, ये भी यहाँ पे आएगी, यहाँ से क्या है, मॉइस्चर लेगी, बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेगी, और इस रीजन पे जो हमारा ये वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, इट विल डू रेनफॉल इन दिस रीजन. यहाँ पे हमारे हिल्स है, उड़ीसा में यहाँ पे, और यहाँ पे भी बारिश करेगी. बिकॉज व्हाट विल बी द बैरियर हियर, बिकॉज ऑफ विच इट विल डू रेनफॉल, यहाँ पे व्हाट वी हैव, हिमालयास. सो लाइक दिस यू विल हैव टू ड्रॉ. ठीक है, हियर व्हाट वी हैव, दिस इज द अरेबियन सी. ठीक है, here what we have, so what are the two branches, first one is the Arabian branch, second one is the Bay of Bengal branch. इतना क्लियर हो गया, you draw करके ये दो branches आप लिख लो. ठीक है, एंड व्हाट रीजन से बारिश ला रही है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे ये इस रीजन में बारिश करे, इस रीजन में. यहाँ पे आते आते व्हाट विल हैपन, द एयर विल नॉट हैव सफिशिएंट मॉइस्चर इन इट, बिकॉज ऑलरेडी इट हैज रेन्ड दिस होल रीजन. ओके, सारा बारिश का पानी, जो मॉइस्चर जो इसने बे ऑफ बंगाल से उठाया था, whatever moisture these winds have taken from this Bay of Bengal or Arabian branch has been rained here. Precipitation has been done in this part, okay, eastern part. So very less moisture is left for this region. That's why it is having a, ये जो हमारा राजस्थान वाला region है, it is a dry, it is a Thar desert. ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी विंड क्या है, सीधे इधर चली जा रही है, यहाँ से भी विंड है, यहाँ आते आते उनका पानी खत्म हो जाता है, प्रेसिपिटेशन इतना नहीं बचता कि यहाँ पे सफिशिएंट रेन फॉलो करे. सो दिस इज अ ड्राई रीजन. ठीक है, हाँ, इट इज अ ड्राई एयर, करेक्ट, इट इज अ ड्राई एयर. ठीक है, दैट्स अ वेरी लेस, ओनली 10 to 20 centimeter of rainfall. Here what is around 100 to 200 centimeter rainfall we have in the Western Ghats and the northeastern regions, and here we have around 10 to 20 centimeter of rainfall. So it is a dry, it means the same thing, it has the air has no moisture in it. ठीक है, so it cannot have any precipitation. ठीक है, जब पानी में, हवा में पानी ही नहीं है तो वो कुछ बारिश भी नहीं होगी. ठीक है, क्या हुआ, हाँ, तो वो सिस्टम काम ही, वहां पे पानी नहीं है उसमें, तो प्रेसिपिटेशन कुछ होगा नहीं. ठीक है, क्योंकि इस एयर को क्या चाहिए, फिर से मॉइस्चर लीडर, समुद्र चाहिए ना जहां से वो मॉइस्चर गेन कर पाए एयर.
ठीक है। सो ये मैकेनिज्म पूरा चलता रहता है, पूरा नेचर एक सिस्टम है, इकोलॉजिकल सिस्टम, और हम ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, उसको इम्बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। Have you all drawn this? Now write down stages in the Indian monsoon. और कुछ कुछ stages होती हैं, वो आप लिख लो, stages in Indian monsoon. ठीक है। फर्स्ट स्टेज इज द बर्स्ट ऑफ द मॉनसून। स्टेजेस में फर्स्ट वन बर्स्ट आता है ना, अचानक से मॉनसून आना शुरू हो गया, बर्स्ट ऑफ द मॉनसून, दैट इज द अराइवल ऑफ द मॉनसून। दिस अराइवल ऑफ द मॉनसून इज ऑलवेज सडन। ना इसके बाद हम फैक्टर्स भी देखेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से व्हाट मेक्स दिस फॉर्मेशन ऑफ द मॉनसून, ऐसे एकदम से सडन स्टार्ट कैसे हो जाता है, ठीक है। सेकेंड स्टेज दैट इज द एडवांस ऑफ द मॉनसून, एडवांस मूव करता है ना, दिस इज बर्स्ट इज सडन, ठीक है, एंड एडवांस इज ग्रेजुअल। हम कहते हैं ना इस तारीख को मॉनसून आ गया, फिर मॉनसून क्या धीरे धीरे केरला, इस स्टेट को एक करके उड़ीसा तक पहुंचता है, फिर यूपी तक आता है, ठीक है। तो धीरे धीरे वो ग्रेजुअल होता है। एडवांस मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे सारे स्टेट्स को वो कवर कर रहा है, सारे रीजन्स को। देन इन द मॉनसून व्हाट वी हैव, समटाइम्स वी हैव रेन बेयरिंग सिस्टम्स। रेन बेयरिंग सिस्टम वो मॉनसून ट्रफ जो बनता है। थर्ड थिंग व्हाट इज देयर इन मॉनसून, दैट इज अ रेन बेयरिंग। रेन बेयरिंग सिस्टम्स, ये क्या है, मॉनसून ट्रफ, मतलब जहां जहां ये मॉनसून ट्रफ जाएगा वहां पे क्या होगी, बारिश होगी। सेकेंड एंड थर्ड स्टेजेस बोथ आर इंटर रिलेटेड, मतलब जहां जहां ये मूव कर रहा है, एडवांस हो रहा है, दैट इज वहीं पे क्या है, ITCZ मूव कर रहा है, वहीं पे ट्रफ बन रहा है, गेटिंग। सो ये क्या है, मूवमेंट, स्टेजेस चल रहे हैं मॉनसून के। देन फोर्थ वन विल बी व्हाट, ब्रेक्स इन द मॉनसून, राइट वन, फोर्थ वन ब्रेक्स। And fifth one is retreating. Breaks in the monsoon, retreat of the monsoon or reversal of the monsoon. ठीक है, तो बस समझ लो इसमें क्या है, burst means the arrival of the monsoon। जब हम कहते हैं ना कि मॉनसून आ गया, so that is called arrival or the burst of the monsoon। जैसे ही मॉनसून हमारे यहाँ से क्या है, यहाँ पे लैंड करेगा केरला में, देन वी विल से द मॉनसून हैज कम, ठीक है, अराइव्ड और इट हैज बर्स्ट, ठीक है, मॉनसून का बर्स्ट। सेकेंड में क्या होगा, एडवांस, धीरे धीरे इट विल मूव एंड वेरेवर इट विल मूव इट विल कैरी द रेन बेयरिंग सिस्टम्स इन इट विल कॉज रेनफॉल, सो दैट विल बी अ स्टेज। नेक्स्ट विल हैव ब्रेक्स। अब क्या होता है कि मॉनसून के सीजन में आप क्या देखोगे, जैसे मॉनसून तो चलता है, हम देखते हैं ना मई जून से हम क्या कहते हैं, मॉनसून आ गया, ये कह देते हैं, बट कुछ वीक्स में आप देखोगे बहुत ज्यादा बारिश होती है, कुछ टाइम पे क्या बारिश नहीं हो रही है, मतलब मॉनसून सीजन है जून टू जुलाई अगस्त, बट फ्यू वीक्स विल हैव सो मच ऑफ रेनफॉल, बट फ्यू वीक्स विल हैव नो रेनफॉल ओनली। कुछ हफ्ते देखना, अरे मॉनसून चल रहा है, बारिश ही नहीं हो रही। सो दीज आर कॉल्ड ब्रेक्स इन द मॉनसून। होता है ना इस सिस्टम में, आजकल तो और क्लाइमेट चेंज की वजह से दिस इज हैपनिंग फॉर फ्यू आवर्स, देयर इज एक्सट्रीम रेनफॉल, एक्सट्रीम डाउनपोर ऑफ वाटर्स। एक ही 2 घंटे में इतना ज्यादा बारिश हो जाता है कि लगता है कि किसी ने पूरी टैंक खाली कर दी, फिर अगले 2-3 दिन तक बारिश ही नहीं होती है ना। सो दिस इज चेंजिंग, सो दीज आर कॉल्ड फ्यू वीक, 1-2 वीक के लिए ब्रेक लग जाता है, सो दैट इज कॉल्ड। अब बारिश नहीं हो रही क्योंकि वो मॉइस्चर कलेक्ट करती है, वो टेम्परेचर उस प्रेसिपिटेशन या कंडेंसेशन पॉइंट पे, सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं पहुंच पाता कि वो रेनफॉल हो पाए, ठीक है। तो वो क्या है, मॉनसून सिस्टम जो हमारा बना है उसमें क्या है, ब्रेक्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, 1-2 हफ्ते बाद फिर से बारिश होने शुरू होने लगी, ठीक है। सो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड ब्रेक्स इन द मॉनसून। और फिर लास्ट स्टेज क्या होगा, रिट्रीटिंग मॉनसून, जब ITCZ क्या है, रिवर्स होने लगता है। What will happen retreating में, what will happen in retreating, Sobo? What will happen in retreating of the monsoon?